पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा इनमें जो कमी आई थी, उसके बावजूद जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर। ये जो तर्ज अमल है दोनों हुकूमतों का, इससे फायदा भारत को पहुंचेगा, अफगानों को नहीं पहुंचेगा। भारत कभी अफगानों का दोस्त नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी सफारती कोशिशें की, दोस्त ममालिक को भी दरमियान में डाला, वफ्द वहाँ भी गए, वहाँ के वफ्द यहाँ भी आए। मुतालबा एक ही था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, लेकिन तालिबान ने एक न सुनी। और ये बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है ये काबुल पे लटकाएंगे हम। पिछले साल से आपको मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि ये अफगानिस्तान में अपना नया दुश्मन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अब इनका आका है, वहां पे सिजदे करते हैं, वहां पे सिर्फ बड़के मारने और बयानबाजी के लिए इन्होंने रखा हुआ है कि गजवाए हिंद तो क्या करेंगे, गजवाए पिंड कर रहे हैं ये। বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন আজ থেকে 2 দিন আগে পাকিস্তান এয়ার স্ট্রাইক করেছিল তালিবানের উপর, অর্থাৎ আফগানিস্তান লাগোয়া সীমানাতে টিটিপির উপর। তাদের দাবি ছিল তারা তালিবানের লিডারকে মেরে দিয়েছে, কিন্তু পরে আফগানের মুখপাত্র তারা জানিয়ে দিয়েছিল যে না, সেই অ্যাটাকে কোনো তালিবান মারা যায়নি, মারা গেছে সেখানকার সাধারণ নাগরিক, তার মধ্যে 3 জন শিশু ছিল। ইভেন পাকিস্তানের আক্রমণ করার পরে বা স্ট্রাইক করার পরে তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল আমরা তালিবানদের লিডার আমরা সফলভাবে তাকে মেরে দিয়েছি, এমনকি আমাদের টার্গেট ছিল তালিবানের ওপর, অর্থাৎ টিটিপির ওপর। কিন্তু পরে যে তারা দাবি করেছিল সেটাও পরে ফাঁস করে দিয়েছে। যে নেতাকে মারার কথা বলেছিল টিটিপির, সেই নেতা পরে একটা ভিডিও বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছিল যে পাকিস্তান এতটা এখনো পর্যন্ত বড় হয়নি যে আমাদেরকে মারার মতন ক্ষমতা রাখে। যাই হোক, তারপরে পাকিস্তানের পোল খুলতে লাগে। আপনারা জানেন এর রিটেলিয়েশন যখন তালিবানের তরফ থেকে দিতে শুরু করে, পাকিস্তানের সেনা চৌকি ছেড়ে পালিয়ে আসে, পাকিস্তানের অনেক চেকপোস্টকে ক্যাপচার করে নেয়, পাকিস্তানের অনেক সেনাকে সারেন্ডার পর্যন্ত করতে বাধ্য করে তালিবান। এখানে শেষ হয়নি, পাকিস্তান ভয় বলতে শুরু করে যে আমরা যে রিটেলিয়েশনটা করেছি সেটা তালিবানের খেলাফ নয়, সেটা হচ্ছে আতঙ্কবাদের খেলাফ। যাই হোক, প্রথমের দিকে আপনারা জানেন ইরানের উপর সেম সিনারিটা করেছিল তারা, কিন্তু যখনই পাল্টা রিটেলিয়েশন দিতে শুরু করে ইরান, তখন তারা বলে না আমরা ভাই ভাই, আমরা দুজনে এক টেবিলে বসে এই মীমাংসার সলিউশন করি। তারপরে পাকিস্তানে নাক কাটা যায় পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে। সেম জিনিসটা চাইছে আবার তালিবানের সাথে। তাদের এখন বক্তব্য যে এই ব্যাপারটাকে আমরা 2 দেশ টেবিলে বসে মিটিয়ে নিতে চাই, কিন্তু তালিবান একদমই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তালিবান স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে এর রিটেলিয়েশন এমন ভাবে দেওয়া যাবে যে পাকিস্তান বারবার ভাববে এরকম এয়ার স্ট্রাইক করার আগে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তার বলার পরে থেকে পাকিস্তান ঘরের ভেতরে ঢুকে পাকিস্তানকে ঠগাই করছে। পাকিস্তান সীমানা থেকে পালিয়ে আসতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিছু চেকপোস্ট করে তালিবানকে কষ্ট করে দখল করতে হচ্ছে না, বিনা চেষ্টায় তারা সেগুলো পেয়ে গেছে। এমনকি খবর তো এটাও বেরিয়ে এসেছে যে তাদের বড় বড় দাবি ছিল পাকিস্তানের, সেটা ফাঁস। পাকিস্তান যেখানে এয়ার স্ট্রাইক করেছে তাতে সাধারণ মানুষ মারা গেছে, না কোনো তালিবান আর না কোনো টিটিপি লিডার। তো বন্ধুরা, ভিডিওটিতে শেষ পর্যন্ত দেখে নিন। अच्छा जी, अब सर इस मामले को लेके एक तरफ तो हमारे शहीदों की जो डेड बॉडीज है उनको लेके फोटो ऑप्स आसिम मुनीर और जरदारी ने कराया और उनका बड़ा हैवी किस्म का पंप अप उसको किया। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया कि हमने अब्दुल्ला शाह को मार दिया, तालिबान कमांडर को। पता क्या चला कि 3 मासूम बच्चों की लाशें सिर्फ जो है वो वहां से निकली। मासूम बच्चे, औरतें भी होंगी, उनकी लाशें दिखाते नहीं है वो लोग, औरतें और मासूम बच्चों की लाशें निकली। अब्दुल्ला शाह सामने आया, कहता है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं तो वजीरिस्तान में बैठा हुआ हूं, मैं तो शवाल वैली के अंदर मौजूद हूं इस वक्त। अब सर अब ये जवाब दिखाइए, ये इनकी क्या हरकतें हैं। मैं आपको कितने अरसे से ये कह रहा हूं सर कि ये अफगानिस्तान में पंगा लेना चाहते हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं ये अफगानिस्तान में पंगा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉलर खाना चाहते हैं। उसी बहाने पाकिस्तान ने आपके पंगे का जवाब दिया, अफगानिस्तान ने रिस्पांस दिया है आपकी एयर स्ट्राइक्स का। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जो है वो फायर बैक किया है सर जी। हमने ये देखा था कि माजी में, और ये मैं बात कर रहा हूं अफगान तालिबान के टेक ओवर से पहले, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, गनी गवर्नमेंट थी, उसमें इंडिया का बहुत असर रसूख था। स्पेशली टीटीपी के जो स्ट्रांग होल्ड्स अफगानिस्तान में थे वो मैनेज हो रहे थे इंडियन काउंसलेट्स के जरिए। वो तालिबान जिनकी हमने हर सतह पर हर जगह मदद की, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपना सवा सत्यानाश कर लिया, वो तालिबान जिनके लिए हम दुनिया से लड़े, वो तालिबान जिनके लिए हमने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप मतलब पूरे मगरब को नाराज़ कर लिया,
वो तालिबान जिनके आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि आज गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, वो तालिबान हुकूमत जिसके आने पर हमने खुशियों के शादियाने बजाए, हमने उनके तरले किए, मिन्नतें की, सफारती कोशिशें की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, वफ्द भेजे कि आपके यहाँ टीटीपी कालदम तंजीम के जमातों के कालदम तंजीम के जमातों के दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो हमें मतलूब हैं, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन हमें हर सतह पर बेरुखी, बेहिसी और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बहुत कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी सफारती कोशिशें की, दोस्त ममालिक को भी दरमियान में डाला, वफ्द वहाँ भी गए, वहाँ के वफ्द यहाँ भी आए, मुतालबा एक ही था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, लेकिन तालिबान ने एक न सुनी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तानी तैयारों ने खोस्त में और पक्तिका में बमबारी की है कल शब 3 बजे, और इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं। ज़ाहिर है जैसा कि कहा गया कि वहाँ दहशतगर्द पनाह लिए हुए, कल भी कहा था कि 5 से 6 हज़ार, हमारे खुसूसी नुमाइंदे ने कहा था कि 5 से 6 हज़ार दहशतगर्द जो हैं टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो वहाँ पे हैं। लेकिन उधर से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ख़ातीन ज़ख्मी हुई हैं, गालिबन कहा कि कुछ लोग मारे भी गए हैं, मगर ये कि 5 ख़ातीन 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। अब ज़ाहिर है बच्चे और ख़ातीन तो टारगेट नहीं हो सकते, टेररिस्ट ही टारगेट थे। और दूसरी तरफ ये है कि यहाँ से कुछ ऐसे बयानात दिए गए हैं, कुछ तो ज़िम्मेदाराना बयानात दिए गए हैं, और कुछ इक़दामात और बयानात ऐसे हैं जो नहायत गैर मुहतात हैं, और ऐसे लोगों ने दिए हैं जिन्हें हम पहले से अर्ज़ करते आए ना कि जिन्हें हुकूमत में नहीं होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने अफ़गानिस्तान के लिए दुश्मन मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दुश्मन को पता चल जाएगा। इसीलिए ये अर्ज़ किया जाता है कि नाजुक जिम्मेदारियाँ ऐसे लोगों को नहीं सौंपी जाती। दोनों मुल्कों में सीरियस मसाइल हैं और दोनों को एक दूसरे से शिकायत हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपनी क़यादत को रोकें, फ़ौजी क़यादत को रोकें, कि दोनों मुस्लिम बिरादर ममालिक में ताल्लुकात में कशीदगी नहीं होनी चाहिए। मसाइल हैं तो मसाइल का हल क्या है? बातचीत है, और कोई हल नहीं है। ये जो तर्ज अमल है दोनों हुकूमतों का, इससे फ़ायदा भारत को पहुंचेगा, अफगानों को नहीं पहुंचेगा। भारत कभी अफगानों का दोस्त नहीं हो सकता, जिसके सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले का नाम ही को हिंदू कुश है और जिनकी 1000 बरस की दुश्मनी है। तो वो अपना भारत जो है वो उनको माली मदद देगा और उन्हें ज़रूरत है सर्वाइवल की। कोई इसके सिवा रास्ता नहीं है कि टीटीपी को रोका जाए। और दूसरी तरफ जारहियत से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सख्ती से मसला हल नहीं होगा। दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, दबाव भी डाला जा सकता है, इसका फायदा भारत को होगा। तो बंधुरा এটাই ছিল আজকের ভিডিও দেখে আপনাদের কেমন লাগলো এটা তো অবশ্যই জানাবেন। আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে সবথেকে এই বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বাংলাদেশিরা। তারা এখন কাকে সমর্থন দেবে সেটাই বুঝতে পারছে না, না পাকিস্তান না তালিবান, কেননা দুটোই তো তাদের কাছে আব্বু। এই মুহূর্তে সবথেকে তারা বড় চিন্তায় রয়েছে। তবে দেখার বাকি এটাই, এই ব্যাপারটাকে নিয়ে তাদের মিডিয়া চলছে এটাতে সম্পূর্ণ লাভ উঠাবে ভারত ব্যাকফুটে। যাই হোক, ওটা তো পরের ব্যাপার, কিন্তু এই মুহূর্তে দুই আল্লাহ আল্লাহ লড়াই চলছে। এই বিষয়টিকে নিয়ে আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।